Say it and let's just start. So before I start the session, before we have any sort of discussion about SAT and LCAT, I would want to know why you guys are joining this session today. क्या चीज़ है जो इस सेशन से आप लोग चाहते हो, क्या चीज़ है जो आप लोग डिस्कस करना चाहते हो? You guys can write it in the charts in the comments box. Everyone will be reading the charts and the questions, तो हमारे जो instructors and they can also guide you better if you're able to tell us what exactly you're looking for. So please engage and please, I'll just give 2 minutes for everyone to write anything in the chat section. Okay. The cost of SAT exam, what exactly is SAT? ठीक है. Now these are all questions जो in the session ये सब चीजें discuss होंगी. तो you sort of tips, all right. So yeah, any more digital SAT? How is it different from LCAT? All right, we do have a slide designated with this part specifically. Anything else? क्या expectations हैं? How to set. Okay, I think we have a lot of things. So yeah, that's great. Inshallah, we will be discussing all of this uh Q&A की तरफ. और बहुत सारी questions हैं जो Q&A से पहले ही instructors खुद आंसर कर देंगे, दानिश खुद आंसर कर देंगे, तो हमें Q&A तक का वेट नहीं करना पड़ेगा. We will be able to answer all these questions before that. Session overview पे थोड़ी सी बात करते हैं. We're going to give you a brief history of Kicksat, why we're here, what we're doing. दानिश जो co-founder हैं, वो founder है, not sorry, co-founder, founder है. He will be giving you his introduction, what he has been doing since the past few years, our objectives, SAT LCAT होता क्या है, मतलब बेसिक क्वेश्चन तो ये है कि भाई होता क्या है. देन हमारे अली रजा है, ही इज मैथ our math instructor for the SAT session. उनका ओवरव्यू देंगे. He has been associated with KickSAT for quite a long time. वो अपना बताएंगे थोड़ा मैथ के बारे में, SAT मैथ के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे. देन वी हैव मायरा, शी इज आवर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर. वो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगी. देन वी हैव अ सरप्राइज अनाउंसमेंट फॉर यू गाइस. So please stay with us till the end of the session because we want to make this announcement and we want everyone to get benefited from this. And then we have a Q&A session. बीच में इसके अंदर एक और चीज है जो गेस्ट स्पीकर सेशन है, that will happen around 5:15, 5:30. तो alumni जो आएगी उनसे भी आप लोग questions पूछ सकते हो, चैट में लिख सकते हो. Talking about vision and mission of Kicksat, I think this is the most basic thing why we're here. Our vision is that we are Pakistan में these tests, these preparations, they're expensive, right? We want कि हम लोग उस financial barrier को हटा के students के लिए इतना accessible बना दें चीज़ कि no one has to think twice before appearing for these tests. Test की cost खुद बहुत ज़्यादा होती है, right? और फिर institute जो है वो preparation के लिए ज़्यादा पैसे मांग रहे होते हैं, and then it just gets out of budget, out of range. So we want कि यार ये financial barrier को हम side पे कर दें, and anyone and everyone who wants to appear for this test, who wants to appear for SAT, LCAT, IELTS, GRE, anything, वो आ सके और वो हमारे ड्रीम यूनिवर्सिटीज. मिशन भी हमारा ये है कि वी वांट टू फैसिलिटेट 25 के एंड तक जो है वो एटलीस्ट जो है 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ड्रीम्स को एक रियलिटी में बदल सकें. एंड एज टाइम प्रोग्रेसेस आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट इंशाल्लाह. So over to Danish. I guess Danish will give you a quick introduction about Kicksat and his role at Kicksat. All right. Thank you so much. Thank you, Rushna. And I am really happy to see everybody who has joined in. So thank you so much. As Rushna shared, my name is Danish. And Rushna said that I am the founder, but in reality, I'm not the founder. I'm the co-founder. I had another co-founder who used to work with me, but then he had different priorities in life, so he left. But that still makes me the co-founder. And I just want to take an opportunity to share about Kicksat, why we started it. तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी background देता हूँ ताकि you guys can understand what we do. And I can also share some of the challenges that we face, and where you guys can really help us bridge those gaps and those challenges. Rushna, can you start the slideshow ताकि ये screen बड़ी आ सके, because अभी I think शायद पढ़ने में थोड़ा सा problem हो. All right, so
Yes, we will definitely share the record. Don't worry about that. So kickstart preparations के अंदर हमारा बेसिक मकसद ये था कि we wanted to help people जो SAT, GRE, IELTS की तैयारी कर रहे हैं. We wanted to help them in every possible way. And where does that need comes from? That need comes from the fact that I never paid for my SAT preparation myself. आई वॉज enrolled into one of the programs जिसमें वो लोग असल में तैयारी करवा रहे थे हमें कि अगर हम यूएस के यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए दे हैड अ फंड और उसके अंदर हमारी सैट की कॉस्ट भी कवर्ड थी, यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन की कॉस्ट थी वो भी कवर्ड थी. एंड दिस वाज आफ्टर माय 10th ग्रेड. जब मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी थी एंड आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर दैट. तो दे वर 4 स्टूडेंट्स जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे पूरे लाहौर से. और हमें ट्रेनिंग दी गई, सैट की सर्विसेज दी गई. मैंने 2 दफा सैट दिया, दोनों दफा वहीं से मैंने तैयारी की. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज कि यार मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जिनको मालूम ही नहीं है कि सैट क्या है, हमें वो क्यों देना चाहिए. उनको ये नहीं पता कि वो चलो बाहर की यूनिवर्सिटीज में नहीं तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है जिनमें लम्स शामिल है, आईबीए शामिल है कराची में, हबीब शामिल है कराची में, फास्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नफ्स में भी अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैट. तो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, तो वो एक अवेयरनेस बनवाना भी जरूरी था. बट ये बात मेरे दिल में आती थी, बट आई वाजंट रियली एबल टू टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट. लेकिन उसी टाइम के दौरान मेरे कुछ जूनियर्स मुझे नजर आए जो सैट की तैयारी कर रहे थे. मैं तब तक सैट की तैयारी खुद कर चुका था और मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरा लम्स में एडमिशन हो गया. आई ऑल्सो गॉट एडमिशंस इन यूएस, लेकिन वो वहाँ पे जो स्कॉलरशिप थी उसके बावजूद मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था. सो मैंने लम्स का इंतखाब किया और मैंने लम्स जाना शुरू किया. और उस टाइम पे मेरे कुछ जूनियर्स तैयारी कर रहे थे एंड दे वर आस्किंग मी कि हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, ये है वो है. एंड आई हैड अ स्मॉल NGO that I used to run. वो मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी and we used to work with the different students in Pakistan, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के अंदर हम काम करते थे. तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से एक सैट की सेशन ऑफर करता हूँ एंड इट विल बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तब तक मैंने कभी खुद सैट नहीं पढ़ाया था और मेरे अपने सैट में, एंड दिस इज मी बीइंग वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट, मेरे अपने सैट में बहुत अच्छे स्कोर्स नहीं थे, बट आई स्टिल वाज स्टडीइंग एट लम्स. तो मैंने खुद सारे की सारी चीजें दोबारा से पढ़ना शुरू की. 5-6 डिफरेंट जो बुक्स उस टाइम पे मौजूद थी उनको रिव्यू किया, खुद कोर्स कंटेंट बनाया. मेरे एक दोस्त थे, उनका 1490 स्कोर था, जो मेरे को फाउंडर भी हैं. उनको मैंने अपने साथ ऑनबोर्ड किया. उन्होंने मैथ पढ़ाई, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई. एंड हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन करवाया था, जो यहाँ पे आपको थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ नजर आ रहा है. दिस वाज इन समर्स 2018. और हमारे पास कुछ 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने उस सेशन को अटेंड किया. एंड बहुत जारी बात है, सारे के सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे लम्स के लिए. वो सैट की तैयारी कर रहे थे, तो सैट के लिए बहुत सारे उन्होंने रजिस्टर भी कर लिया उसी टाइम के दौरान. तो हमारे पास सितंबर या अक्टूबर के अंदर हमें पता चला कि हमारे 3 स्टूडेंट्स के ना रिजल्ट्स आए हैं. 2 के 1300 से ज्यादा स्कोर थे, एक का 1270 स्कोर था. एंड दीज वर रियली गुड स्कोर्स कंसिडरिंग द फैक्ट कि मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे उनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता उनको. ये जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं सैट के अंदर इंग्लिश के, मैथ के, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते. खासतौर पे इफ यू आर कमिंग फ्रॉम बोर्ड लाइक पंजाब बोर्ड का बैकग्राउंड, तो आपके लिए डिफिकल्टी होती है. तो वो स्टूडेंट्स जिस लेवल पे थे उनके लिए इतना ग्रो करना हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था. एंड वी वर रियली रियली प्राउड एंड हैप्पी, बट वी नेवर थॉट कि वी वांट टू एस्टेब्लिश इट एज एन ऑर्गेनाइजेशन. बट उसके बाद ऐसा हुआ कि अप्रैल में जाके हमें पता चला कि हमारे 2 स्टूडेंट्स का लम्स में एडमिशन हो गया. दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी बिकॉज आई वाज स्टडीइंग एट लम्स एट दैट पॉइंट. और मेरा अभी पहला साल कंप्लीट हुआ था लम्स में, और मेरे अपने, बल्कि नहीं, दूसरा साल कंप्लीट हुआ था. और उस टाइम के ऊपर मेरे अपने स्टूडेंट्स का लम्स में एडमिशन हो रहा था, और मेरे लिए वो बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. और उसी दौरान उसी साल में, दो ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2019 की, सॉरी 2018 की, नहीं 2019 की. 18 में हमने पहला सेशन किया. 19 के अंदर हमें पता चलना शुरू हुआ, 19 के मार्च में, अप्रैल में, के स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए और 5 लोगों का एडमिशन हो गया. दैट्स द टाइम व्हेन आई टॉक टू दैट सेम फ्रेंड हु टॉट दैट सेशन एंड आई वाज लाइक यार हम स्टार्ट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन. और उसमें हमने अपनी जो सैट की फी थी वो बहुत कम रखी. उस टाइम पे लोग 20-25 हजार चार्ज कर रहे थे, हम लोगों ने 10 हजार से स्टार्ट किया. और हमने कहा कि हम साथ में फाइनेंशियल एड ऑफर करेंगे एंड इट वेंट रियली रियली वेल. हम लोगों का वो पहला सेशन भी बहुत अच्छा हुआ और हमने आगे से भी चीजों को ग्रो किया. टिल डेट हम अब तक, ये थोड़े से आउटडेटेड नंबर्स हैं, हमारे पास जो करंट नंबर्स हैं उसके अंदर हम तकरीबन 650 से ज्यादा स्टूडेंट्स को अब तक पढ़ा चुके हैं. 150 से ज्यादा कोई सक्सेसफुल एडमिशंस हैं. लम्स के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो देर अराउंड 70.
अब इस टाइम के कैलकुलेशंस के मुताबिक 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा चुके हैं, और एंड यू गाइस कैन सी कि उसमें उसके अलावा सारे स्टूडेंट्स ने कोई फीस पे की, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल एड मिली है, और इस टाइम पे हम कोई 60 से ज्यादा सेशंस कंडक्ट करवा चुके हैं। अब इसके अंदर एक बात जो नोट करने वाली है वो ये कि एज एन इंस्टीट्यूट हम एट द एंड ऑफ द डे कहीं से हमें फंडिंग नहीं मिलती। हम अपने आप को खुद से सस्टेन करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास 4-5 लोगों की टीम है, इंस्ट्रक्टर्स, एंड वी मेक श्योर के जो मर्जी करके वी आर एबल टू पे ऑल द टीम मेंबर्स, एंड देन वी डिलीवर द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स। वो इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि मेरी ये इंटेंशन नहीं है दैट आई वांट टू मेक मनी आउट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, बट एट द सेम टाइम आई वांट दिस इंस्टीट्यूट टू बी सस्टेनेबल। और उसकी वजह से एट दिस पॉइंट हम अभी भी अप टू 100% फाइनेंशियल एड तो ऑफर कर रहे हैं, एंड वी विल ऑलवेज do that, but we are going to be very very strict when it comes to the 100% financial aid, because in the past we have seen a lot of people exploiting the fact कि हम हमारा जाहिर बात है हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है जो हम हर किसी स्टूडेंट के साथ बहुत ज्यादा बातचीत करें और फिर हर किस्म का डॉक्यूमेंट देखें। डॉक्यूमेंट्स हम पहले भी देखते थे बट बहुत ज्यादा स्क्रूटनी नहीं करते थे, बट अब वो हम स्क्रूटनी करते हैं बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर दैट द बेस्ट स्टूडेंट्स गेट द अपॉर्चुनिटी। सो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर फाइनेंशियल एड, प्लीज डू अप्लाई, बट कॉपरेट विद माई टीम टू मेक श्योर कि हम एक फेयर डिसीजन कर सकें। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमें नजर आ रहा हो कि आप 50% फाइनेंशियल एड लेकर पे कर सकते हैं और आप कह रहे हो कि मेरे हालात नहीं है। हम नहीं कर, आई अंडरस्टैंड आजकल के हालात के अंदर इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद इट। तो ये एक चीज शायद अगर आप किसी दोस्त को जानते हैं जिसने पहले एस किकसैट से किया और उसने आपको कहा हो कि मैंने तो फ्री में कर लिया था, उनको बस कहते रहो कि मैं नहीं पे कर सकता, तो आखिर में वो इनरोल कर सकते हैं। दैट कैन नॉट हैपन नाउ, बिकॉज हमारा अपना एक क्राइटेरिया है। हम उस क्राइटेरिया के मुताबिक ही अपना जो डिसीजन है वो करेंगे, और ये वही क्राइटेरिया, दैट क्राइटेरिया इज वेरी सिमिलर टू द क्राइटेरिया दैट लम्स हैव फॉर देयर फाइनेंशियल एड। क्योंकि मैं खुद लम्स से हूँ तो मेरा ज्यादा लम्स के हवाले से एक्सपीरियंस रहा है, बट हम फिर भी 100% फाइनेंशियल एड ऑफर करते हैं। और अगर आप ऐसे एक स्टूडेंट हैं जिसका बैकग्राउंड ऐसा है कि आप बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपकी मंथली इनकम 30-40 हज़ार है, घर की मंथली इनकम 30-40 हज़ार है, एब्सोल्युटली वी विल टीच यू फ्री ऑफ कॉस्ट, बट यू विल हैव टू प्रूव कि आपकी वाकई इनकम बहुत कम है, 50 हज़ार से कम है। बट अगर 50 हज़ार से ज्यादा है तो फिर हमें उसके मुताबिक कुछ ना कुछ क्राइटेरिया देखना पड़ता है। अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है। मेरे जो भी टीम मेंबर आपके साथ राब्ते में, उमायमा इज प्रॉब्ली इन टच विद यू, रीच आउट टू उमायमा, लेट हर नो दैट यू वांट टू अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड। वो आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेजेंगी, आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे और बताएंगे कि आप मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोस डॉक्यूमेंट्स उमायमा विल गिव यू द फाइनल डिसीजन कि हम आपको कितनी फाइनेंशियल एड ऑफर कर सकते हैं। सो दैट्स काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन of who we are, where we started from, where do we stand right now, and what are the things that we are kind of struggling with, and we need your help to make that happen. अच्छा, उसके बाद अच्छा, ये कुछ एक दो मैंने मेरे सामने से जो एक आध सवाल ऐसे गुजरता है मैं उसका जवाब दे दूंगा, बाकी हम बिल्कुल एंड के ऊपर जाके जवाब देंगे। हमारे जो अभी तक हाईएस्ट स्कोर आया है हमारे स्टूडेंट्स में वो 1500 का आया है आउट ऑफ 1600, एंड वी आर अगेन वेरी ऑनेस्ट विद ऑल दीज थिंग्स। अब हमारे पास आपका सवाल हो सकता है कि यार अगर आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, 6 साल हो गए हैं, आप ही कभी किसी स्टूडेंट के 1600 आउट ऑफ 1600 क्यों नहीं आए? The reality of the matter is most of the students who come to KickSat, these are the students जिनके diagnostic test में start वाले test के अंदर 950 1000 150 स्कोर आ रहा होता है आउट ऑफ 1600। तो हम जो आप लोग गारंटी तो हम कोई चीज भी नहीं कर सकते बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों ने अपनी मेहनत करनी है। बट वन थिंग दैट वी कैन डेफिनेटली से इज फॉर मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स हमने 200 to 300 के दरमियान के स्कोर इंप्रूवमेंट देखा है फ्रॉम द टाइम यू ज्वाइन किकसैट एंड द नेक्स्ट 7 वीक्स जब आप पूरी की पूरी तैयारी करते हैं। एंड आई कैन से कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ दैट माई टीम विल बी एबल टू डू द सेम। Ali is really good, Myra is really good, and both of them will help you in every possible way to make sure that you can achieve that progress. बट यू हैव टू डू योर पार्ट एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप लेसन्स ले रहे हो, लेसन्स लेने के बाद रिकॉर्डिंग्स को भी रिव्यू कर रहे हो ताकि आप कोई भी चीज मिस ना कर रहे हो, और आप होमवर्क और जो जो भी प्रैक्टिस है उसको ज्यादा से ज्यादा करें। जितना आपको प्रैक्टिस दिया जाए उससे ज्यादा प्रैक्टिस करें इफ यू वांट टू अचीव दिस नंबर। अगर आप ये गाइडलाइन सारी फॉलो करेंगे, nobody can stop you from achieving more like 250 300 के करीब स्कोर की इंप्रूवमेंट आप लाजमी तौर पर देखेंगे। हमारा जो एवरेज स्कोर है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने सैट दिया है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो सैट की तैयारी करते हैं बट देन दे रियलाइज कि वो सैट नहीं दे रहे, या वो लम्स का एल कैट देते हैं बिकॉज एल कैट इज वे मोर अफोर्डेबल। सो इफ यू स्ट्रगल विद फाइनेंशियल्स एंड यू डोंट वांट टू पे दैट मच फॉर एसएटी का किसने पूछा था कितनी फी है, आई थिंक इट इज $103, यू कैन कंफर्म दैट, बट इसी के अराउंड 100
$210 के दरमियान होगी, तो एक्सचेंज रेट अप्लाई करके आप देख लें, आई थिंक 30,000 के करीब खर्चा होगा। बट एलकैट का जो है ना वो काफी अच्छा, 150 हो गया, सॉरी, अली ने कंफर्म किया $150 हो गया, तो वो तकरीबन आप एक्सचेंज रेट के मुताबिक देख सकते हैं कि मुझे लगता है कोई 40 से 45 हजार के करीब ये आपकी कॉस्ट आएगी। जबकि लम्स के अंदर ये कॉस्ट बहुत कम है। लम्स की रजिस्ट्रेशन, एडमिशन फी और एलकैट की फी मिला के वो टोटल पैसे जो हैं वो शायद 15-16 हजार बनते हैं। अगेन ये कंफर्म करना पड़ेगा, हर साल चेंज हो जाता है, तो आप अपने एडमिशन के क्राइटेरिया में जहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आप वहां से कंफर्म कर सकते हैं। सो यू कैन सी कि काफी बड़ा डिफरेंस है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एलकैट देते हैं। बट दैट बीइंग सेड एलकैट देने वाले स्टूडेंट्स का जारी बात है हमें रिजल्ट्स पता नहीं चलते, नाम लम्स अनाउंस नहीं करता, बट जितने लोगों ने सैट दिया है उनके अंदर हमारा जो एवरेज स्कोर है ना सैट का, दैट इज बिटवीन 1280 टू 1330। ये हमारा एवरेज स्कोर बनता है स्टूडेंट्स का, जिन स्टूडेंट्स ने एसएटी दिया है। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? All right, so this is a little bit of introduction from for me. I've been working in the training and learning and development sector for last 7 years, more than 7 years. This is long before not long before, but way before when I joined LUMS. I was working in different organizations, and I also had a small non-profit that is called Ilm Kada. It's on pause currently, but I'm trying to revive it these days. जिसमें हमने 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का काम किया all across Pakistan. It was all free of cost. And I worked with more than 200 volunteers who were working at Ilm Kada at some point. इसके अलावा मैंने एक एजुकेशनल कंपनी में पाकिस्तान में काम किया. I was a trainer there, then I was a program manager, then I became an operations manager. I have had different experiences working on different leadership programs जिसमें हम लोगों को हेल्प करते हैं कि वो अगर अपना कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना एक छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटी सी नॉन प्रॉफिट स्टार्ट करना चाहते हैं, सो उसके अंदर आप उन लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं. आई एम करंटली बेस्ड इन द यूके. तो मैं एक इदारा है जिसका नाम है इम्पैक्ट हब ब्रेडफोर्ड. आई एम अ बिजनेस कोच देयर, and I also work at an ed tech company in US as a product manager. So this is what I do apart from running Kicksat with my team. And I graduated from LUMS in 2021. And इसके अलावा I have helped, like जारी बात है, जितने भी आप सब के पास ये आप जब आप लोगों का ग्रुप बनेगा, once you enroll, you guys will have my contact number, and my contact number means that you guys can reach out to me whenever you want. A lot of students reach out to me और मुझे नहीं पता होता उनका, क्योंकि अब मैं खुद सेट नहीं पढ़ा रहा, मेरे इंस्ट्रक्टर्स पढ़ा रहे हैं. लेकिन if you guys need any help, any support, any guidance, you can reach out to me. I might be very late to giving you guys a response, but my doors are open. You can reach out to me, and whenever I can help you with your queries. But आप कोशिश करें कि टीम से राब्ता करें, इंस्ट्रक्टर से राब्ता करें. वहां से अगर आपको वो जवाब नहीं मिल पाता या वो सपोर्ट नहीं मिल पाती जो आप एक्सपेक्ट करें, देन यू कैन डेफिनेटली कम टू मी. जहां तक आपके इंस्ट्रक्टर्स की बात है, आप इंस्ट्रक्टर्स को ड्यूरिंग द सेशन, जब तक आपका सेशन चल रहा है, उसमें हमारे साथ इंस्ट्रक्टर्स की कमिटमेंट है कि इन 7 हफ्तों में यू गाइस कैन रीच आउट टू देम ऑन व्हाट्सएप एंड दे विल असिस्ट यू अकॉर्डिंग टू देयर ओन टाइम, ऑफ कोर्स. बट आफ्टर द सेशंस there is no guarantee that the instructors can help you, and I don't expect them to help you at all. But my team and I will be there for as long as you can imagine, and as long as we are in this business, we will help you without any cost. We are not going to charge you anything. हम that और मतलब बैचलर्स के एडमिशंस की भी गाइडेंस देंगे, बाद में मास्टर्स की भी देंगे, आइट्स करना है आइट्स की भी देंगे, जीआरई करना है जीआरई की भी देंगे. तो हम जितनी आपको सपोर्ट दे सकते हैं वो हम देने की कोशिश करेंगे. एंड आई एम ट्राइंग टू एस्टेब्लिश, लाइक क्योंकि अब मैं खुद यूके के अंदर हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू एस्टेब्लिश जो स्टडी अब्रॉड की एक पूरी की पूरी कंसल्टेंसी है, जिसके अंदर जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स है उनको भी कवर किया जाए, और जो लोग पे करके जाना चाहते हैं उनको भी कवर किया जाए. सो आई एम वर्किंग ऑन दैट. होपफुली वेरी सून यू गाइस विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ वेबिनार्स like this that we will be hosting for people who are applying for different scholarship programs, and we are hoping कि उसकी वजह से आप जैसे बहुत सारे और स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो किकस्टार्ट के अंदर किसी प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं या नहीं है. So that's a little bit of my introduction. And if there is anything that I can help you guys with, please don't hesitate to reach out to me, and I will help you with it. And I will. Do you want me to cover the objectives, or would you do it, Roshna? I can do it, yeah. Okay, perfect. Thank you so much, everyone.
Sorry. Objectives about Kickstart preparations, why we're doing what we're doing. Danish ने पूरी back story आप लोगों को I hope बहुत अच्छे से समझा दी होगी. What's the thought process behind us being here? But हमारे objectives अभी भी यही है कि हम लोग students के लिए self paced learning को कर सकें. हमारे जितने भी sessions होते हैं, they're all recorded. So even if you can't attend a class, आपको recordings मिलेंगी. वो recordings आपके पास end of time तक रहेंगी. So you can use those recordings. You can learn. आप वो रिकॉर्डिंग्स देखें, आप अपनी पेस पे वो कोर्स करें. आप थोड़ा सा पीछे भी हो गए तो कोई बात नहीं. Instructors will be there to support you throughout the 7 weeks. So you can do all of the preparation on your own pace, not at the pace of the instructor or the pace of the entire class. सही है, वो आप पे डिपेंड करता है. Then we want कि हम लोग एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को वो करें. हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, मायरा एंड अली, और बाकी भी जो इंस्ट्रक्टर्स हैं जो आईएस पढ़ाते हैं, जीआरडी पढ़ाते हैं, देर ऑल वेरी फोकस्ड ऑन स्टूडेंट लर्निंग. कि ये हमारा गोल नहीं होता कि हम क्लास में आए, हमने जो है आकर जो 3-4 टॉपिक पढ़ा दिए एंड किसी को समझ आए नहीं आए. वी वांट टू मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स आर देयर, दे आर लर्निंग, दे आर लिसनिंग. बट अगेन वही बात है कि हमें बहुत सारे टाइम्स पे स्टूडेंट्स से एंगेजमेंट नहीं आती. आगे से ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो स्टूडेंट्स are lagging off, they're not joining, they're not committing to it like they should. So obviously that also depends on the students, but as instructors we're always here, as a team we're always here. हम if you go to other institutes in Pakistan or even abroad, they're very expensive. वो उनकी ट्यूशन फी अलग होती है, उनकी रिसोर्सेज वो आपको अलग पैसों में दे रहे होते हैं. वी वांट कि हमारे जो सेशन की कॉस्ट है उसी के अंदर हम लोग सब कुछ कवर कर दें. आपको टेस्ट भी मिले, आपको बुक्स भी अगर कोई रेकमेंड कर सकते हैं हम वो करें. हम टेस्ट भी दें, हम टेस्ट लें भी, हम होमवर्क भी दें, हम क्लास वर्क भी दें. अब नाउ दीज आर ऑल थिंग्स, मैं आपको होमवर्क क्लास वर्क दे दूं, लेकिन इफ यू नॉट डूइंग इट देन ऑब्वियसली देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट. बट वी वांट कि यार बच्चे करें सारी चीजें, जो भी हम उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, देर एबल टू यूज दोज टू अ सर्टेन एक्सटेंट. Then one thing that Danish has already mentioned, कि our mentality is that we want everyone to be a mentor. Like I want you guys to come reach out to me if you guys have any query. Reach out to Danish, reach out to Mema, reach out to Amara. We have a lot of team members. Reach out to the instructors, because we, again, like how we said, we're not just going to teach you SAT. We want to give any kind of support that we are capable of, right? मैं जिस information जिस capable हूँ मैं आपको दूंगी. जिस भी चीज की, चाहे वो पर्सनल स्टेटमेंट्स हो, चाहे वो भाई एडमिशंस इन लम्स हो. Danish can help you with financial aid. He has been a student of LUMS. Ali and Myra, they're all students of LUMS. So they have very strong expertise in that area, and they will be able to help you out. So do not shy away from texting us, from asking questions, because that's essentially why we're here. So this is how we want to make the mentors and the mentees all feel empowered कि जो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन रहा है वो कोई ना कोई वैल्यू लेके यहाँ से निकल रहा है. तो this is the kind of mindset we are operating with. Then we have, okay, let's engage. अभी यहाँ पर chat में बहुत सारे लोगों ने question पूछा हुआ था SAT होता क्या है. That's fine, we will be telling you. But if anyone knows what SAT is, what LCAT is, why you want to appear for it, पाकिस्तान में एडमिशन चाहिए, बाहर जाना है, तो just let us know in the comment sections ताकि हम देखें कि what basically आप किस mindset से यहाँ पे आए हो. Just engage in the chat section. It's open for you all. What is SAT? Okay, I think let's start with what SAT is. It's fine if you guys don't know. That's completely fine. That's essentially why we're here. I think Myra, you can lead this. Hello, everyone. I hope you can hear me. Right, so let's move on to the slide. So I'll be telling you more about SCT. So what is SCT? It's the International Standardized Test. So you can give it for securing admission in foreign universities. Like you can apply in US, Europe, okay? And if you are in Pakistan, like you are planning to go to LAMS or IB or NAST or FAST, so you can give SCT as well. Okay? And if we look at the duration of SCT, so I'll just tell you the difference between the old SCT and the new SCT. So I hope that you know that now it is digital. Okay, so you just have to give your exam on computers, on your laptops. But before this,
it was used to be a paper-based SAT. So now the time duration is also lessened, and it is now 2 hours and 14 minutes, and it used to be 3 hours without essay. So primarily we are concerned with two things that is very important. So maths and English skills. I hope that you know that maths and English, they are very important in any field. So that is why they are being tested on SAT as well. So the max score on each of the sections are 800. So you have to get marks out of 800 on maths and 800 out of 800 in English as well. Okay, and you can look at the time allocated for reading and writing. So that is 64 minutes. And you have to keep this thing in mind that for reading and writing section, there are two 32 minutes modules. Okay, so there is no one module, but two more modules for reading and writing, and two modules for maths as well. So you can see the number of questions. So for reading and writing, there are 54, and for maths, there are 44. Okay, so you can look at this slide. So can we move on to the next one? Yeah, so you can skip this one. I just covered that. Right, so let's move on to the LCAT thing, because I hope that many students prefer to give LCAT because LCAT is easier than SAT. I would say, because I also gave SAT and LCAT, and I've also taught many students, so I hear from them that LCAT is very easy, but English is easier than SAT, but maths is actually a little difficult than SAT maths. Okay, so what is LCAT and why we give it? So in order to get admission in LUMS, so you need to have this test. So you have to give this test. Okay, so this is primarily for LUMS. And the duration is 2 hours, 20 minutes, as told by our students. And in this test, you have maths and English. Again, these are very important. No calculator sections are there on LCAT. And for reading, you have, for English, you have reading and writing. And LUMS do not it disclose their score. So you like, if you gave it very well, you will not know that were you able to give a good SAT, LCAT, or a bad one, because they are not disclosed. Okay, so this is all about LCAT. So if you have any question regarding LCAT or SAT, you can let us know in the chat box as well. Right. So we can move on to the next one. Okay, so I'll give my introduction. I'm from LUMS, and I was the high achiever in ONA levels. And on SCT, I got 1560, and I have over 5 years of teaching experience. So I know at this point that what things are lacking in students, expertise. So I primarily focus on those particular skills so that you can improve English. Okay, so I'm open to your constructive criticism as well. So like, if you need any help regarding SCT English, you are most welcome. You can always reach out to me. And I've taught at LUMS summer session. I've taught over 500 students, both locally and internationally, and I also taught at Renowned Ventures. So now let's move on to the content of SCT and LCAT. So what is covered in SAT, LCAT, and SCT? So here you can see four major, topics. So the first one is craft and structure. What is that? So in this particular topic, there are subtopics like, for example, word and context question, cross text connections, text structure and purpose. And if you move on to the next one, like other topic, information and idea, standard English conventions, and expression of ideas. So there is a lot, right? अगर आप इसको read करें, like for example inferences, boundaries, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी like what they are, but once we are in the session, I'll be going over each and everything in detail. Like for example, word and context है, उसमें हम primarily बात करते हैं vocabulary questions की, तो वो हम साथ साथ करेंगे, like किस तरह से हम tackle करेंगे word and context questions को, vocabulary questions को, ठीक है? इसी तरह अगर central idea है, how to tackle them, inference question है, boundaries questions है, how to tackle them as well. ठीक है? So this is all about SCT. You don't have to worry like how will we go over that. We will be actually going in detail, so you don't have to worry about that. That's it from my side. We can move on to the next one.
All right, thank you so much, Myra. Now, let's get to Ali. He is our math instructor at Kicksat. जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको वेलकम टू पीक सेट्स प्रिपरेशंस। प्लीज पिछली स्लाइड की ऊपर जी पहुंचो। अच्छा, फॉर माय इंट्रोडक्शन, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम NAMS इन 2022। मैं आई वाज अ NLP स्टूडेंट एट NAMS, और these figures are basically outdated। मैं टेस्ट प्रेप सेक्टर में मुझे तकरीबन 5वां साल स्टार्ट हो गया है। आई हैव completed my 4 years, और आई हैव बीन टीचिंग GRE, SAT, ECAT, NET विद मल्टीपल टेस्ट कंपनीज। और इसके अलावा मैंने GRE क्वांट सेशंस नम्स के अंदर पढ़ाए हुए विद सेंटर फॉर क्वांटिटी एजुकेशन स्टडीज। और उसके अलावा नम्स के अंदर मैंने GRE की वर्कशॉप्स कराई हैं। और इसके अलावा आई हैव बीन मैथमेटिक्स का इंस्ट्रक्टर इन NOP सेशंस। For my background, I have been silver medalist in FSC board exams, or I have been second position holder in Pakistan Science Foundation Talented Program in all over Pakistan. At NAMS, I was an NWP scholarship, I was a merit scholarship holder, और currently I have been basically I am doing masters at NAMS। अगर आप लोगों को कभी कभी भी आप लोग NAMS में आए तो you can meet me। और प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, सेट मैथमेटिक्स के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली आपके पास सेट मैथमेटिक्स के अंदर पहले तो ये होता था कि आपके पास एक कैलकुलेटर सेक्शन आता था और एक नॉन कैलकुलेटर सेक्शन आता था। कैलकुलेटर सेक्शन वो होता था जिसके अंदर बेसिकली आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, और नॉन कैलकुलेटर उसके अंदर आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। और नॉन कैलकुलेटर वाले जो क्वेश्चन होते थे उसमें बस थोड़े बहुत होते थे, ज्यादा नहीं होते थे। देयर वर ओनली 20 क्वेश्चन एंड देयर वर 38 क्वेश्चन जो कि आप अटेम्प्ट करते थे विद कैलकुलेटर। जो टाइप ऑफ, लेकिन अब क्या है, अगर आप एलकेट देने जाते हैं तो कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। ठीक है। अगर आप एससीटी देने जाते हैं तो वहां पर कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो तो आपके पास टाइप ऑफ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस क्या क्या है? हमारे पास एक तो ये है कि अलजेब्रा के हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वही टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि आप 7th 8th 9th 10th में करते आते हो। आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन होते हैं, डाटा एनालिसिस, आपके पास सेटेड डाटा के रिलेटेड कोई ना कोई टॉप आपके पास क्वेश्चन होता है, और आपने उस डाटा से आंसर को एक्सट्रैक्ट करना होता है। एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास लीनियर इक्वेशंस आ सकती है, नॉन लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टाइप चीजें हो सकती है। और इसके अलावा आपके पास ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने देखा होगा आपके पास साइन कॉस थीटा है, इस तरह की चीजें अगर आपने पढ़ी हो तो इस तरह की चीजें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही आती है। ज्योमेट्री आपको पता है, ट्रायंगल्स और 3D शेप्स के बारे में आप जो भी क्वेश्चन करते हैं वो ज्योमेट्री के अंदर लाए होते हैं। और ये जो क्वेश्चन डिजाइन इस तरह से होते हैं कि आपके पास, क्योंकि पहले तो पेपर बेस्ड होता था एससीटी, लेकिन अब एससीटी पेपर बेस्ड नहीं होता। तो आपके पास शुरू के अंदर इजी क्वेश्चन आते हैं, देन हार्ड आते रहते हैं। तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ पैटर्न अलाउज यू टू डिमोन्स्ट्रेट कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो इस तरह से आपके मार्किंग स्कीम भी बन जाती है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं, मैं आप लोगों के क्वेश्चन इंशाल्लाह जब जैसे ही ये खत्म होता है मेरी बात में आपको सब सारे आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर देता हूँ। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं, 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो इनपुट टेक्स्ट या फिर वर्ड क्वेश्चन होते हैं। और ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आपके पास साइंस, सोशल साइंस या फिर रियल वर्ल्ड सिनारियोस के बना लेकर उसके अंदर मैथमेटिकल स्किल्स आपकी नॉलेज को चेक करते हैं कि आपको कितना नॉलेज है। उन वर्ड्स का बस एक मकसद होता है कि आपको रियल लाइफ के अंदर, फॉर एग्जाम्पल बड़े लोग कहते हैं कि मैथ का हमारी रियल लाइफ में इतनी एप्लीकेशन नजर नहीं आती। तो वो क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन है कि वर्ड्स, उन वर्ड्स का मकसद बेसिकली ये होता है कि आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन भी मालूम हो जाए, और उसके अलावा आपको किस तरह से उस वर्ड्स में से एक्चुअल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, ये भी स्किल है। तो ये है कि आपके पास, जैसे कि मैंने अभी भी बात बताई, कि कैलकुलेटर अलाउड होता है इन ऑल सेक्शन। तो
ये सिर्फ और सिर्फ सैट के लिए। एल कैट के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता अगर आप यू आर गोइंग फॉर द एल कैट। नेक्स्ट स्लाइड। ओके। Okay, so all right, everybody, this was a brief introduction from Ali, Myra, उन्होंने थोड़ा सा overview भी दे दिया. Now we want कि we open the floor for questions. I think अभी already हमारे पास बहुत सारे questions हैं. तो Ali and Myra, they will start answering. जो math related questions होंगे वो Ali answer कर देंगे. जो English related होंगे वो Myra answer कर देंगी. At 5 p.m. we will have the alumni of Kicksat joining in. तो अभी हमारे पास 17 minutes हैं. हम तब तक जो है जितने questions cover कर सकते हैं वो करते हैं. बाकी the floor is open. If you guys have any more questions, you guys can start posting it on the chat. And बारी बारी जो है हम लोग questions answer करेंगे, तो don't worry, हर question answer होगा. Alright, so Ali and Myra, over to you guys. Let's start from the beginning because हमारे पास start से काफी सारे questions हैं. ठीक है, हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन। व्हाट एग्जैक्टली सेट इज, आपको अभी भी हमने बताई दी है कि आई एम क्वाइट होपफुल कि आप लोगों को आइडिया होगा कि आज सेट हमारे पास क्या किस तरह का टेस्ट है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको अभी भी सेट समझ नहीं है तो यू कैन टेल मी, वी कैन टेल। अगर किसी को आइडिया नहीं हुआ अभी तक कि सेट क्या चीज़ है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। सबको आइडिया है? Some sort of tips to improve SAT reading, Myra will give you अगर उनके पास कोई सेट की है। डिजिटल एसएटी हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एलकैट। अच्छा, एलकैट और डिजिटल एसएटी में कोई खास फर्क नहीं है क्योंकि लव्स बेसिकली एसएटी के ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो आपके पास अगर मैं आपको कहूँ कि डिजिटल एसएटी और एलकैट में क्या डिफरेंस है, वो सिर्फ ये डिफरेंस है कि आ, उसके आपके पास मैथमेटिक्स के सेशन में आई कैन टेल के आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, और सैट के अंदर आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होता है। और थोड़े बहुत जो क्वेश्चन होते हैं मैंने जो एल कैट्स के, क्योंकि एल कैट का कभी पेपर आउट ही नहीं होता, ठीक है, दिस द थिंग। लेकिन हाउ वी नो के एल कैट में क्या क्या चीज़ें आती है, बिकॉज वेरी ऑफ आवर स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम्स दिए होते हैं, और फॉर एग्जाम्पल हमने भी, मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरे दो भाइयों ने खुद दे आर एट द, मेरे एक भाई है वो लक्स के अंदर है, बाकी देर आर मैनी स्टूडेंट्स जो कि लक्स के अंदर है। तो हाउ दे टेल कि अच्छा हम जो एससीटी के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को करवाते हैं दे आर मच अलाइंड टू द एल कैट। तो बेसिकली एल कैट और जीडीएल एससीटी में कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, एल कैट के अंदर थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मैथ के सेक्शन के अंदर वो आपको थोड़ा बहुत आपके ए ओ लेवल्स और एफएससी और मैट्रिक के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, थोड़े बहुत, यानी उसके क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा होते हैं, लेकिन काइंड ऑफ डिजिटल एसिटी ही है। I has if we have studied till 12, is it enough for SAT? देखिए, एसएटी के लिए आपके पास जो नॉलेज है वो, फॉर एग्जांपल आप अगर 11th क्लास में पास कर चुके हो तो यू कैन गिव एसएटी, ठीक है। देर आर मेनी स्टूडेंट जो 10th क्लास के बाद भी दे रहे होते हैं। आई टोटली बिलीव कि मैं इस चीज़ पे ये कहता हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोग अगर आप देना चाह रहे हो तो यू विल फील डिफिकल्टी, लेकिन अगर आपने 11th क्लास कर ली है तो यू आर एट द परफेक्ट टाइम कि आप एसएटी दे सकते हैं। बुक्स रिकमेंडेड फॉर एसएटी प्रेप, ये हम आप जब आपको सेशन में हम इंशाल्लाह शुरू करवाएंगे तो वी विल आपको बुक्स भी शेयर करेंगे
जो कुछ भी हमारे पास मटेरियल होगा वो विद द टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको अभी से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आप सेशन में आते हो और हम आपको शुरू में ऐसे नहीं करेंगे कि अच्छा ये बुक से जाके पढ़ लो, क्योंकि ये जो होता है ये क्वाइट अनप्रोफेशनल, इट फील्स क्वाइट अनप्रोफेशनल और स्टूडेंट्स के साथ मुझे लगता है ज्यादती होती है इन द सेंस के आप एकदम कह दो कि अच्छा आप खुद जाके पढ़ लो। मेरे ख्याल से आपको हम हमेशा ऐसे कहते हैं कि हम आपको पहले टॉपिक्स वगैरह पढ़ाते हैं और उसकी क्लास के अंदर हमारे सामने आप लोग क्लास के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देन वी विल गिव यू होमवर्क। अगर आपको होमवर्क के बाद भी अगर आपकी चीज़ें सब और उसके बाद हम आपको टेस्ट वगैरह भी देते हैं, अगर आपको उसके बाद भी ज़रूरत होती है बुक्स तो हम यकीनन शेयर करते हैं। तो जस्ट ये कि अगर आपके पास कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही फॉर एग्जाम्पल, तो आप रिकॉर्डिंग देख लो, अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो आप यू कैन रीड। अदरवाइज वी फील के हम आपको क्लास के अंदर ही इतना कुछ करवा देते हैं, मेरे ख्याल से बुक्स की जरूरत नहीं। यस, वी शेयर रिकॉर्डिंग, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लासेस एंड होती है तो हम आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह, हमारा हर सेक्शन जो होता है वो रिकॉर्डेड होता है और उसकी हर एक की रिकॉर्डिंग की जाती है। हाउ टू क्रैक एसएटी फॉर हार्वर्ड। देखिए हार्वर्ड पे अगर आपको लोगों ने यू आर एमिंग फॉर हार्वर्ड तो एसएटी इज द नॉट ओनली थिंग जो कि आप लोगों को क्रैक करनी है। तो इसके ऊपर मैं बहुत लंबी डिस्कशन कर सकता हूँ कि हार्वर्ड वगैरह में अगर आपने जाना है तो एसएटी आपको कितना चाहिए। आई हैव सीन पीपल जो कि 40-90 के ऊपर गए हुए हैं, आई हैव सीन पीपल जो कि 15-30 के ऊपर भी गए हैं। हाँ ये चीज़ है कि उसका एवरेज स्कोर कितना चाहिए। आई हैव सीन पीपल जिनके 15-70 थे और ही वॉज रिजेक्टेड फ्रॉम हार्वर्ड और 14-90 वाले का हो। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। तो आई फील के दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कि अगर आपने एसएटी हार्वर्ड के लिए तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है, प्रोफाइल के अंदर काफी सारी चीजें। बट स्कोर यू शुड, अच्छा बीएससी ऑनर्स का ये है कि लफ्ज के अंदर आप, मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि आप बीएससी ऑनर्स कह रहे हो तो आप कौन सी फील्ड के अंदर कह रहे हैं कि आपने बीएस ऑनर्स कर रहे हैं। तो हतीब आपका ये क्वेश्चन है, मुझे नहीं आइडिया कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि क्या स्कोर आपके लिए इनफ होता है लफ्ज के अंदर जाने के लिए। तो दिस इज वेरी, अगेन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आई वुड से कि लफ्ज आपके सिर्फ और सिर्फ एनकेट या फिर सेट के मार्क्स नहीं देख रहा होता है, लफ्ज आपकी ओवरऑल प्रोफाइल को इवेल्युएट करता है। फॉर एग्जाम्पल देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनके आई फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, दिस इज वेरी रेयर केस, लेकिन आई हैव सीन मेरे टाइम में जब आई एडमिटेड टू इन 2018 और 2019 में भी मैंने देखा था कि देर वर स्टूडेंट्स जिनके 1400 के करीब करीब मार्क्स थे, दे वर रिजेक्टेड फ्रॉम एसएससी। ठीक है, मैं एसएससी की बात कर रहा हूँ, नॉट एसडीएस। ठीक है, तो दे वर रिजेक्टेड एट 1400 फ्रॉम एसएससी, लेकिन देर वर अ स्टूडेंट जिसके 1060 मार्क्स थे इन एसएटी। ठीक है, जो कि लफ्ज उस टाइम पे लफ्ज एसएटी ही कंडक्ट करवाता था। तो उस शी वाज एडमिटेड और वो स्टूडेंट जिसके 1400 थे वो एडमिट नहीं हुआ था। ठीक है, तो बात ये थी कि प्रोफाइल लफ्ज जिस तरह से प्रोफाइल को आपके एवेल्युएट करता है तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट क्राइटेरिया कि आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट आई विल टेल के फ्रॉम माय पास, यानी मुझे लफ्ज के अंदर अभी भी फॉर एग्जांपल आई एम मास्टर्स प्रॉब्लम्स ड्यू टू माय पर्सनल रीजंस। आई वाज एडमिटेड एट यूएस यूनिवर्सिटीज, लेकिन मैं अपनी फैमिली रीजंस की वजह से नहीं जा पाया। तो मैंने अपने पास 6 इयर्स एट लव्स के अंदर ये सीखा है कि लव्स जो भी क्राइटेरिया बनाते हैं तो इट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन कि आप कौन से इलाके से आ रहे हो, कौन से फॉर एग्जांपल
काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि फॉर एग्जांपल साउथ पंजाब, इंटीरियर सिंध या बलोचिस्तान से होते हैं, उनके लो मार्क्स के ऊपर भी एडमिशन हो जाता है, कंसीडरिंग के उन्होंने काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस की होगी, अ, शायद एसएटी के एग्जाम के उनके फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से। तो लव इस चीज को कंसीडर करता है कि गिवन के अगर इस बच्चे को एक अच्छी लाइफ दी जाती, एक अच्छे रिसोर्सेज दिए जाते, तो ही और शी वुड आउट परफॉर्म। तो मेरे ख्याल से स्कोर्स को कह भी दूं अगर के इतने स्कोर ले लो, तो उसके बाद भी ना आपकी प्रोफाइल के अंदर भी आप इम्प्रूव कर सकते हो चीजें। ठीक है, तो मल्टीपल थिंग्स है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। वी विल, जब मैं आपके साथ मेरी इंशाल्लाह पहली क्लास होगी, तो आपको थोड़े बहुत मैसेज के ऊपर गाइड भी करता रहूँ मेरे साथ साथ क्लासेस में। What SAT is and how it can help us to get into हार्वर्ड का मैंने बता दिया है कि आपको स्कॉलरशिप के लिए आपके 50 या देखो 15 तो आपको क्रॉस करना ही पड़ता है हार्वर्ड के लिए। लेकिन उसके बाद भी आपकी प्रोफाइल के अंदर क्या सीरीज है, तो उस चीज इज देयर कैलकुलस इन सैट मैथ। सैट की मैथमेटिक्स के अंदर जी हाँ कैलकुलस है, बिगिनर है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने, आई डोंट नो कि आप लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, लेकिन उसके अंदर कैलकुलस यानी बेसिक कैलकुलस तो होती है, जो कि शायद आप इस लेवल की कैलकुलस होती है जो कि आप शायद अगर आप 9th 10th में की होती है आप लोगों ने, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाली नहीं ज्यादा आती। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन दे आर नॉट गोइंग टू टेल के अच्छा इंटीग्रेशन सॉल्व करो, इस तरह के नहीं होती। ठीक है, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स होती है बेसिक, क्योंकि एसएटी एक ऐसा टेस्ट है जो कि मैथमेटिक्स वाला बंदा भी दे सकता है, और जिस उस बंदे ने भी दे सकता है जिसने कभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी यानी थोड़ी बहुत पढ़ी, जैसे बेसिक नॉलेज है। तो एसएटी आपके बेसिक मैथमेटिक्स के नॉलेज को चेक करता है, ना कि ये कि आप मैथ के अंदर दूसरे एरियाज के अंदर कितने अच्छे हो। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या है कि आपको अलजेब्रा आती है, आपको स्टैटिस्टिक्स आती है, आपको आपको एडवांस मैथ के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो ये बेसिक मैथ है। हाउ मच टू स्कोर, मैंने अभी बताया कि कोई लम्स के लिए आपको ये होता है कि देखो, एक पतली मिसाल मेरे माइंड के अंदर आ रही है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ठीक है, टू बी ऑन द सेफ साइड, देखो अगर आप कम मार्क्स लेते हो तो आप यू आर नॉट ऑन द नेवर इन द सेफ साइड। आप अच्छे मार्क्स क्यों लेते हो? अच्छे मार्क्स इसलिए लेते हैं कि हाँ भाई, हम अच्छी सेफ साइड पर हैं। तो ये है कि जितना हो सके उतना आप अच्छे मार्क्स लो। ठीक है, क्योंकि आप उतना ज्यादा, आपकी उतनी ज्यादा हायर प्रोबेबिलिटी होती है टू गेट सिलेक्टेड। ठीक है, यू आर नॉट गारंटीड, मैं ये नहीं कह रहा कि गारंटीड होते हैं, लेकिन आपकी दूसरे लोगों से अच्छे चांस होते हैं आप जितना अच्छे मार्क्स लेते हो। तो हाँ, और इट आल्सो डिपेंड्स के स्कूल टू स्कूल भी वेरी करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि अच्छा एसएससी में जा रहे हैं तो 1350 प्लस मार्क्स ले लो, तो यू आर ऑन द वेरी वेरी सेफ साइड। ठीक है, 1400 मार्क्स ले लो, आप एसटीएसपी में अच्छे से जा सकते हो। ठीक है, 1300 वालों को मैंने 1300 और 1350, ये में एचएसएस वाले और लॉ वाले पहुंच जाते हैं। तो इन द एंड अगर आप मेरी बातों से देखो तो मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम 1300 तो स्कोर करो। तो ये सीन है, लेकिन एक्सेप्शंस भी है। लव जिस तरह से आपको जज करता है वो अलग क्राइटेरिया है। इट आल्सो डिपेंड्स कि आपका किस तरह से आपको चेक करते हैं। ठीक है, आपकी फॉर एग्जांपल आपके दूसरे फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक एफएससी या ओ ए लेवल्स के बड़े अच्छे ग्रेड्स हैं, और लेकिन आप एसएटी में इतना अच्छा नहीं कर पाए। तो लव्स विल सी कि अच्छा देखो इसके तो वहाँ पर बड़े एक्सेप्शनल ग्रेड्स हैं। तो वो जो आपके एक्सेप्शनल ग्रेड्स हैं मैट्रिक एफएससी या फिर ओ ए लेवल्स की तरफ, वो आपको कंपनसेट करेगी आपके। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि हाँ भाई किस तरह से। देखिए टाइम लिमिट तो मेरे ख्याल से जो आइल्स की तो चलो 2 साल होती है ना, कि मेरे ख्याल से मैंने लास्ट टाइम जो देखा था 5 साल के लिए वैलिड होता है, तो इट इज वेरी लॉन्ग टाइम एसएटी।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे ख्याल 5 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन एक दफा मैं दोबारा चेक करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एसटी और जीआरई दोनों 5 साल के लिए वैलिड होता है। यस 5 इयर्स। अच्छा, आप लोगों के इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो मैम मायरा करेगी। प्लीज मैम मायरा आप, Yes, सॉरी sure. मैंने आपको बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। No, no worries. Okay, so I am starting from the start of this chat. So first question is by Hatim, I think. Yeah, so some sort of tips to improve SAT reading. So for reading, I always give this tip to students that they start reading. Okay, because in order to crack SAT reading, आपको read करना बहुत जरूरी है. So starting from the very first class, like जब आप session में हमारे साथ आते हैं, so I'll emphasize on this thing a lot that you start reading articles. Okay, आप पढ़ें, हर रोज पढ़ें. इस तरह से नहीं करना कि आप एक दिन 5 आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट 5 days कुछ भी नहीं पढ़ रहे. यू हैव टू रीड एवरी डे. लाइक अगर आप एक दिन एक आर्टिकल भी पढ़ते हैं, इट्स इनफ. द नेक्स्ट डे रीड 1 आर्टिकल, देन अदर रीड 1 आर्टिकल. इसी तरह से आपने जब तक एसटी नहीं देना, आपने तब तक रीड करते रहना. बिकॉज वंस यू आर नॉट रीडिंग, इफ यू आर स्किपिंग एनी डे, सो आपकी जो रीडिंग स्किल है वो फिर पीछे चली जाएगी. यू विल नॉट बी improving with day by day. So that is why I recommend that you start reading. And the other thing that I recommend my students is that they learn vocabulary. अब आपने सुना होगा कि vocabulary questions नहीं आते. Like पहले 2016 से पहले जो SAT होता था उसमें vocabulary test होती थी. Like many difficult words were there. But now it is not being tested in such a way. But फिर भी आपको कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करने में, रीडिंग करने में, जो आपको मैसेजेस मिलते हैं या टेक्स्ट मिलते हैं, उसको रीड करने के लिए आपको ऑब्वियसली वोकेबलरी इम्प्रूव करनी होगी. सो आई रिकमेंड दैट यू स्टार्ट लर्निंग सम एक्स्ट्रा वर्ड्स एज वेल. ठीक है. इंग्लिश क्वेश्चंस और है, या इंग्लिश रीडिंग इज टिपिकली डिफरेंट और डिफिकल्ट. कैन हाउ कैन आई ग्रिप? So Dalit, it's the same, that you start reading every day and learning vocabulary, and you do practice every day. Okay, and there was one other question related to reading or writing. Yeah, so the other one is that in English, is there any advanced English grammar? So advanced तो नहीं मैं कहूँगी, but it is the basic one. Like जो आप पहले like metric में भी आपने पढ़ी होगी, FSC में भी पढ़ी होगी. बहुत ज़्यादा advanced नहीं होगी, but it's not too basic as well. Like it's on the medium level, I say. ठीक है. जिस तरह for example non essential clauses क्या होते हैं, independent clauses क्या होते हैं, and what are subjects. So इस तरह की चीज़ें, pronoun, relative pronoun. ठीक है. So we'll be going over each concept in the session. Okay, the other question is where Erica reading and writing book good? Yes, it's a very good book. Okay, is this grammar of SAT likewise our metric grammar? Yeah, it is similar to that. Okay, ठीक है. So that's it from my side for the English Q&A. If you have more questions, so you can type your text in the chat box as well. So we'll answer them in the end as well. Alright, guys, we still have a time. We still have time. तो अगर कोई questions हैं, तो please keep posting them. We will keep responding. Okay, Akib, so you are saying tips for speaking. So SAT or LCAT में important नहीं होता that you learn speaking as well, जैसा IELTS में होता है. But have this thing in mind कि जब आप SCT की practice करेंगे, LCAT की हो या SCT की हो, you will see with the passage of time कि आपकी English automatically improve हो रही है. Why? Because जब आपको लिखना आ जाएगा,
आपको पता चल जाएगा टेंसेस किस तरह से यूज करने हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं, कब हम कोलन लगाएंगे, कब हम सेमीकोलन लगाएंगे। सो ऑब्वियसली आपकी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होगी और आपकी स्पीकिंग स्किल भी इंप्रूव होगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। The other question is any strong vocabulary matters more? So vocabulary मैटर करती है, बट आई विल नॉट से कि आप डिक्शनरी को याद करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, बिकॉज इन आवर सेशन वी गिव अ लिस्ट ऑफ vocabulary, आप वो कर लेंगे, यू विल बी गुड टू गो। एंड अदर देन दैट जो भी आप प्रैक्टिस टेस्ट करें उसमें भी जब आप डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं, सो आई रिकमेंड दैट यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन डिक्शनरी, लाइक अपने फ्लैश कार्ड जिस तरह से होते हैं वो बनाएं, और वो जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उसमें आप लिखते जाएं और साथ उसका मीनिंग सर्च करके आप उसको भी लिखते जाएं, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको याद भी करें। सो आपकी वोकेबलरी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। सो वोकेबलरी इंप्रूव होगी, आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी और क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे। एनी अदर क्वेश्चन फॉर इंग्लिश? इफ यू हैव, सो आप टेक्स्ट करते जाएं एंड विल आंसर विद टाइम। Okay, guys. So we have Aroop with us. She has just joined the session. So Myron Ali, let's pause the Q&A for a while. Let's give the stage to Aroop, and उसके बाद हम लोग questions वापस से answer कर सकते हैं। तो अगर अभी भी किसी को questions याद आ रहे हैं, कुछ भी याद आ रहा है, तो वो chat box में करता रहे. As soon as Aroop is done, we will give back the stage to Ali and Myron. They can answer your questions. All right. As for Aroop, she was a student at Kickstarter Preparations, and then she studied at LUMS. तो उरू आई जस्ट वांट टू नो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आप सैट का एक्सपीरियंस शेयर करो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क द स्टूडेंट्स, और अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग चैट पे लिख सकते हो अरूप से, बट अरूप इज अ गेस्ट स्पीकर सो शी डजंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो हो सकता है वो सारे आंसर्स क्वेश्चन आंसर ना कर सकें, बट जितने हो सके शी विल डू इट. ऑलराइट, ओवर टू यू अरूप. Hello, Assalamualaikum everyone. I studied from Kickstarter in 2021, I guess, and my experience at Kickstarter was amazing. मेरे टाइम पे सर दानिश पढ़ाते थे, and like उनका अच्छा just to clear, आवाज आ रही है मेरी clearly? Hello, मेरी आवाज clearly आ रही है? Yes. Am I audible? Okay, perfect. So, yeah. So, Sir Danish ka ye scene hota tha. I took English classes from him, and what he used to do was he used to focus on the macro level things. जिस तरह से जो अब मुझे exactly नहीं याद, but English में comprehension वगैरह के part में, reading part में छोटी छोटी like किस तरह के questions आते हैं, किस तरह के passages आते हैं, timed passages, and then the writing part में all sorts of grammars and everything. सर ने उन सब की मैक्रो लेवल पे प्रैक्टिस कराई थी हमें, लाइक वीकली सेशंस भी होते थे, साथ साथ सर वाज अवेलेबल on chat as well, WhatsApp पे, so I literally used to text him and bother him a lot to have my query solved, and he used to reply properly on time. So this was one of the best things that the tutor was available hand like to you at every time. So एक ये चीज की वजह से Kickstarter was an amazing experience for me and helped me ace my SAT. Other than that, when applying to LUMS, one thing I would like suggest you guys is make sure your application may now two things that make you stand out. क्योंकि देखो, everyone who's applying to LUMS जो कि like जिनकी application qualify होगी, वो ये होती है जिनके grades और SAT scores तो अच्छे होते ही हैं. मतलब there is this automatic thing in the application processes which filters out all the good SAT scores and all the good क्या कहते हैं grades. So what makes you stand out as an applicant and make sure that you're chosen is your personal statement and your extracurricular activities. I had like 20 plus extracurricular activities. मेरे दिमाग में जो आ रहा था मैंने डाल दिया था. मैंने literally class 4-5 की भी activities डाल दी थी where I've like won some award to like give them an idea that I've always been an active student and I've always took part in the extracurriculars, and that's also because LUMS का in itself environment ऐसा है that you're not just focused on academics, you're in multiple societies, you're working part-time,
You are doing a lot of things. So they want someone who is multi-talented and is not just bookworm. Other than that, another thing is कि जरूरी नहीं है अगर आपका स्टार्ट स्कोर खराब हो तो आपका एडमिशन नहीं होंगे. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह आई हैव सीन who are in LUMS with an SAT score of 1100s and 1200, लेकिन उनके ग्रेड्स अच्छे थे. तो लाइक वन थिंग और दी अदर कंपेंसेट्स. अगर आपका SAT स्कोर खराब है, आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, तब भी आपका एडमिशन हो सकता है. Yeah, so what do you want me to explain? Can we add the societies that we're part of for college including? Yeah, definitely. Add all the societies you're a part in, and not only add them, but also tell आपका उनमें क्या role है, आपने क्या किया है, and significant changes आपकी वजह से society में क्या है. Not just mention that you were a part of it. To make sure that you stand out, mention how you have worked to make that society improve and what has been your contribution in it, because that is something that the recruiters and the people who are going to select you are looking for. So make sure that you present yourself as a well-rounded person who is interested and passionate about the degree they want. For example, I'm a social answer major, and the degree I'm pursuing, a lot of people don't really want to do it because it's in humanities and social sciences stream. But when I was applying, I made sure I made myself paint as someone who is dying to be a sociologist, dying to study sociology, who cannot live without it. तो मतलब आप जो भी मेजर पढ़ रहे हो, आपने ACF करना है, आपने MGS करना है, आपने political science करना है, whatever you want to do, make sure अपनी personal statement में जरूर बताओ कि आपने क्यों करना है, आपके क्या passion है, goals हैं इसको related, आपने एक like career plan आपका जैसे devised, और मतलब make them believe that LUMS ही आपका मतलब do or die है, और LUMS नहीं तो कुछ भी नहीं. But I don't like think like that. Obviously, apply to every other university. But just make sure कि उनको ही आपने believe करवाना है कि you are ready to give it all for LUMS, and that is something that the applicants will like, and that is something that can make them choose you over the other applicants as well. If anyone has any questions, so please feel free to ask. Anyone, any questions? I think there are no questions. I am done with my part. If there's anything, let me know. I can clear it. Myra, you can take over. All right. Thank you so much, Sarup, for joining in. I know it was very short notice, but you were able to make it. And thank you so much, guys, because you guys are not posting any questions. Sarup can leave. And उसके बाद अगर आपके कोई questions हैं, you can post me, Myra, Ali, we can all answer it. And if there are no other questions, then we can go towards ending this session. But before I end the session, I want to make an announcement. And that's a surprise that actually we had for you. And वो surprise ये है that our upcoming SAT LCAT session is starting from 14 June, which is next Friday. And Saturday, Sunday को classes हुआ करेंगी. फ्राइडे को टेस्ट डेज हुआ करेंगे. फ्राइडेज को कोई क्लास नहीं होगी, टेस्ट हुआ करेंगे. अगर किसी इंस्ट्रक्टर को लगा कि एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है तो दे विल make up those classes and then they will inform you about it. The session is for PKR 30,000, which again for a lot of people is a lot, and that is fine. Lekin because you guys were able to join the session, आप लोगों ने engage किया, आप लोगों ने बहुत आप तरह का questions पूछे, which we really loved. We are offering you a 20% discount, flat 20% discount, which will make the cost of the session for you 24,000 rupees. इसके बाद भी अगर आपको लगता है you need financial aid, you need anything, you can message me, you can message my team. हमें आपकी वेरिफिकेशन करनी होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने होंगे, बट रेस्ट अश्योर्ड हम लोग फाइनेंशियल एड देते हैं और हम डिजर्विंग स्टूडेंट्स को देते हैं. आप ऑलरेडी डिस्काउंट पे पढ़ रहे हो और अगर आप उसके बाद भी चाहते हो तो वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. वी विल बी देयर टू मेक श्योर के
इक्वली हर किसी को चांस मिले यहाँ पे एनरोल करने का, which is why we're offering this exciting discount. The instructor for this sessions will be Ali Raza and Myra. Both of them you've met today. अभी भी we have time. If you have any questions from Ali and Myra, you can ask them in the chat section. अपनी पूरी तसल्ली करके आप लोग register कर सकते हैं. The course duration is for 7 weeks. The course begins on 14 June. All the recordings will be shared with everyone. हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाएगी. आप अपनी पेस पे कर सकते हो. टेस्ट वगैरह, स्टडी मटेरियल सब कुछ हमारे एंड से प्रोवाइड किया जाएगा. तो दिस इज एन अनाउंसमेंट दैट वी हैड टू मेक. ऑब्वियसली हम लोग हर किसी को डिस्काउंट ऑफर नहीं करते. आप लोग इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज यू गाइस टुक आउट अ टाइम ऑन सैटरडे to come here to engage with us, to help us, you know, arrange this session basically. So yeah, that is that. Iske baad, I don't have any more thing to discuss, but if you guys have anything to discuss, you guys can discuss it because abhi bhi hamare paas time hai. तो अगर कोई questions कुछ भी जहन में आ रहा है, you will be, like, we will be here to answer you. All right, you guys are asking the deadline to apply. Deadline to apply हमारे पास 12th June तक है, because 14th का session start हो रहा है, right? So we will have to make necessary arrangements. तो 12th June तक you guys can register, and अगर हमारे आप group check करें तो group में there is this person who made this group, Umaima Salahuddin. She is our sales representative, and you can directly reach out to her if any of you want to join the session. अगर उनका नंबर नहीं मिला तो मुझे reach out कर लो. I will redirect you to them. Financial aid apply करने के लिए Umaima will be reaching out to you. You can message Umaima or you can message me, and then we will reach out to you. We will give you a set of documents. उसमें से बहुत सारी चीजें documents होंगे, बहुत सारी चीजें questions होंगे जो आपको सिर्फ answer करने होंगे, and you can once we are able to verify your case, Umaima will get back to you with a decision. Last day to apply for financial aid is the same as the application deadline, जो कि 12 जून तक है, ताकि हम necessary arrangements कर सकें. तो आप प्लीज Umaima को reach out करें और Umaima से पूछें. जो भी questions हैं आपको, आप जरूर उनसे पूछें. आप लोग पूरी तसल्ली करें अपनी session के हवाले से. The reason why we conducted this session today, especially with the instructor, was because बहुत सारे बच्चों को ये doubt होता है कि legit organization है, credible है, कैसे instructors होंगे हमें नहीं पता, कैसी टीम होगी हमें नहीं पता, पैसे लेके भाग जाएंगे. ये सब बहुत ज्यादा कंसर्न्स होते हैं लोगों को, बिल्कुल वैलिड कंसर्न्स होते हैं. तो अभी हमने ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सेशन अरेंज किया था ताकि everyone who comes to this session, they're able to get some information out of it, and they can also get to know the details about our next session. So if you're interested, you can reach out to Mema. Mema's also shared her number. Anything else you guys want to ask about the session, about SAT, about LCAT, anything? अगर नहीं है तो फिर we will be ending the session, but अगर है तो I'll wait for 5 more minutes. You guys can post your questions. All right, I don't think हमारे पास और कोई questions आ रहे हैं. अगर अभी भी इसके बाद भी किसी को कोई question हो तो again we are there. हमारे numbers group पे available हैं. आप लोग
message, reach out karo. We will try to get back to you as soon as possible. Again, the discount remains valid for until the 12th of June. Aap usse pehle register karo, you will get the session for 24,000 rupees. And I will be sharing the recorder. And thank you so much for joining. Thank you, Ali and Myra, for taking out the time to take this webinar. Thank you, Allah Hafiz.